Rahim students, now we are starting our chapter number 2, and the chapter number 2 is based on real number. The name of this chapter is real number. Basically, real number is the union of a rational number and irrational number. Rational numbers are represented by q and irrational numbers are represented by q dash. So the real number is the union of rational plus irrational. Clear? Now, first of all, you have to know about what is a rational number and then what is irrational numbers. तो rational number की definition की तरफ आते हैं. The number which can be written in the form of p over q, जिन्हें आप p over q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where pq belongs to integers, z means integers, and q is not equal to 0 are called rational number. It is denoted by q. For example, 5 है, 4/5 है. These are the examples of a rational number. Now, real numbers, the number which cannot be written in the form of p over q, where pq belongs to integers and q is not equal to 0 are called irrational number, and it is denoted by q dash. Square root 5 and pi are the irrational numbers. Irrational numbers are non-terminating and non-recurring numbers. This is the one more thing for the irrational numbers कि वो non terminating होते हैं और non recurring होते हैं. What is the terminating and what are non terminating? After studying the rational and irrational, first we are studying about the real numbers. The union of rational number q and irrational number q dash are called the real number. Real numbers are denoted by r, and r is equal to q union q dash. Now we are talking about the terminating decimal fraction. These are also known as non-repeating. In this, the decimal fraction in which the number after the decimal point is finite. यानी when you do the division process, the value will be ended. यानी the remainder is 0. जब आपका ये division process में करें तो इसका आंसर 0 आ जाए और आपके पास कोई value remainder में नहीं आएगी. This is known as terminating decimal fraction or non-repeating. और इसी को अगर हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग की बात, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में क्या है? द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज इनफाइनाइट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. लाइक दिस इज़ द नंबर विच हैव यू गिवन. जब आप इसको डिवीजन करेंगे तो इसके पास आपके पास कोई ना कोई इसका रिमाइंडर जो है वो आता जाएगा और ये सो ऑन आपके पास चलता जाएगा, इसका एंड नहीं होगा. क्लियर? नाउ अब इन डेफिनेशंस को देखने के बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपका सिंपल सा चैप्टर है. जैसे 2.1 में देखिएगा, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. 5/7 इज़ गिवन टू यू. यू हैव टू सॉल्व बाय 5 को आप अंदर रखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे. 7 से डिवाइड नहीं होता तो यहाँ आपको 0 लगाना पड़ेगा और ऊपर आपको पॉइंट ऐड करना पड़ेगा. क्लियर? 7 7 49. देन आपके पास 1 रिमाइंडर आएगा. आप यहाँ पर 0 जो है वो ऐड कर सकते हैं और इस 0 को आप नीचे मूव करवा लेंगे, ये 10 हो जाएगा. क्लियर? नाउ 7 1 7, आपके पास 3 आ जाएगा. नाउ आप इसमें एक और 0 ऐड करेंगे और उसको नीचे मूव करवा लेंगे, इट बिकम्स 30. 7 4 28. सो 2, यहाँ पे सब में आपने सब्ट्रैक्शन करनी है. क्लियर? एक और 0 लगाएंगे, इसको भी नीचे मूव करवाएंगे. 20. 7 2 14, माइनस किया अगेन 6, फिर एक और 0 लगाएंगे, इसको मूव करवाएंगे, इट बिकम 60. 7, यानी आपके पास एंड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर पे रिमाइंडर आता जा रहा है. इट्स मीन के इट विल बी not ended, it will be non terminating. नीचे आपको लिखना पड़ेगा non terminating decimal fraction. और इसका आंसर आपके पास क्या आया है? 5/7 is equal to 0.7142. Clear students? नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट. अगर आप सेकेंड पार्ट की तरफ देखते हैं तो इसमें आपको 3 को अंदर रखना है, 5 आपके पास बाहर आ जाएगा. अगेन यहाँ पर बी पॉइंट लगाएंगे. 5 6 30, तो ये आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो गया. इसका रिमाइंडर आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड अपॉन यू.
तो इसका आप आंसर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका आंसर आप 3/5 इज इक्वल टू 0.6 और इसके बाद आप मेंशन कर दें कि इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही क्वेश्चंस हैं जो आप 2-3 क्लास से करते आ रहे हैं। तो बाकी सारे पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। जो एंड हो जाएगा वो आपका टर्मिनेटिंग होगा, जो चलता जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर? नाउ दीज आर द 4 पार्ट्स, यू हैव टू सॉल्व देम। 6/7, 2/7, 3/8 and 8/5. Clear? Now look at question number 2, and the question number 2 is convert the following rational numbers into decimal fraction and separate repeating and non-repeating. Now this is the question which is given to you, 3/7. Now you are divided this, 3 आप अंदर रखेंगे, 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे। अगेन आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। 7 4s are 28. By subtracting this you got 2, 0 आएगा। 7 2s are 14, 6 अगेन 0 आएगा। 8s are 56, 4 अगेन 0 लगाएंगे। 40, 5s are 35, यानी इट विल बी नॉट एंडेड। आप देखें तो ये चलता जा रहा है आपके पास। सो 3/7 इज इक्वल टू 0.4285 and it is repeating decimal fraction. Clear? Now look at the second part, and the second part is 4/5. Similarly, put 4 inside the division sign and 5. Now it becomes 40 and 5 8s are 40. It will be ended. Now 4/5 is equal to 0.8. So it is non-repeating decimal fraction. So clear students? होप आप सबको समझ आ गई होगी। ये कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं और इनके बाकी पार्ट्स जो हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे। कुछ आपके जो नोट्स गिवन हैं उन पे हैं, लेकिन आप लोग फिर भी बाकी पार्ट्स को खुद ट्राई करें। नाउ दीज आर द सम पार्ट्स यू हैव सॉल्व बाय योरसेल्फ। क्लियर स्टूडेंट्स? होप यू ऑल आर क्लियर। Now exercise number 2.2. Now exercise number 2.2, and in exercise number 2.2 they are discussing about the square first. When a number is multiplied by itself, then the product is known as the square of a number. If a number, एक नंबर आपको दिया और उसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहा जाए, इट्स मीन कि उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट बिकम्स 9. लाइक दिस कि अगर 3 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहा है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गॉट 9. इसी तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 7 है तो 7 का अगर आपने स्क्वायर फाइंड करना है, इट्स मीन यू हैव टू मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7, इट बिकम्स 49. क्लियर? इसी तरह से 11 का स्क्वायर फाइंड करना है, इट्स मीन 11 मल्टीप्लाई बाय 11, इट इज़ इक्वल टू 121. क्लियर? इसी तरह 19 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 19 मल्टीप्लाई बाय 19 and it becomes 361. Now some parts are given for your practice. Now these are the 3 parts for your practice. You have done by yourself. इनको multiply करना 2 times और you got the square of this number. Now question number 2. Question number 2 is write the summation pattern for the following squares. Square is given 6 square. जब आपको summation pattern लिखने के लिए कहा जाएगा तो आपने मिड में नंबर जो आपका है वो लिखेंगे। उसके बाद मिड में लिखने के बाद आप अपनी काउंटिंग 1 से स्टार्ट कर दें, यानी यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग लिखेंगे 5 4 3 2 1। अगेन यहाँ पे 5 4 3 2
1. This is become the Smithson pattern. Clear? Now अगर हम 7 को देखें, 7 को यहाँ बैकवर्ड काउंटिंग लिखेंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1. Clear? और इसी तरह 6, 5, 4, 3, 2, 1. Clear? For 4, 4, 3, 2, 1. इसी तरह 3, 2, 1. These are the Smithson pattern. Now you have to find the Smithson pattern of 5 square, 8 square and 3 square. Clear? Now this is our exercise 2.2. In the Smithson pattern, one thing for you कि अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो 36 आएगा, बिकॉज 6 स्क्वायर की बात हो रही है तो 36 आएगा, 7 स्क्वायर की बात हो रही है, इन सबको प्लस करेंगे 49 आएगा, 4 स्क्वायर की बात है, इन सबको प्लस करेंगे तो 16 आएगा. फॉर योर कन्फर्मेशन आप इन सबको ऐड करके देख सकते हैं.